Hello students, welcome to the online lecture of Organization of Commerce and Management. This is the third lecture of Organization of Commerce and Management. First question we have completed, that is Introduction of Organization of Commerce Management. First question I have explain the human activities. Second question is define business, explain the features of business. Kavita Miss has started the second question. Kavita Miss already explained the format or presentation of answer for 2 years. So first is your definition. Definition के बाद meaning होना चाहिए students. मीनिंग के बाद आप लोग पॉइंट्स लिखो. पॉइंट्स के बाद आप एक एक पॉइंट्स को एलॉबरेट करने का यही प्रेजेंटेशन आप लोगों को 2 साल तक सेम रखने का है. ये फॉर्मेट आपको याद ही रखने का है. कविता मिस ने एक स्लाइड ही बना के प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर कैसा होना चाहिए ट्यूसडे का लेक्चर में मैम ने दिखाया, वो आप लोग नोटबुक में लिखे ही रखो. So question already started, that is define business, explain the features of business. So today proceeding with the business, that business is a human activity, economic activity. Not only human activity divided into two, non-economic and economic. Non-economic में monetary gains involvement नहीं रहता है, economic activities में monetary gains रहता है. The goods and services exchanged for money or money's worth is a economic activity. Business represents organized efforts of individual or group of individuals. आई एम टेलिंग दैट इंडिविजुअल बोलेंगे तो अकेला भी बिजनेस कर सकता है और 2 जन कर सकता है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज एग्जाम्पल सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, और बड़ा कंपनी भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. सो goods and services are produced. Why they are produced? They are produced to sell them in the market. गुड्स प्रोड्यूस करके प्रोड्यूसर उसके पास रखने के लिए गुड्स प्रोड्यूस नहीं किया है. गुड्स वो मार्केट में लेके आएगा, मार्केट में सेल करेगा, सेल करने के टाइम सी देयर इज अ लिंक देयर, देयर इज अ चैनल, देयर इज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज प्रोड्यूसर से लेके होलसेलर, होलसेलर रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर्स. नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं चार्ट बना के दिखाएगी, दैट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हियर कॉमर्स, प्रोडक्शन हियर इंडस्ट्री. सो बिजनेस में गुड्स कौन प्रोडक्शन करते हैं, वो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं. कौन सर्विस दे रहे हैं, कौन डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग द बिजनेस. सिंपल मीन्स एवरीवन इज doing the activities to satisfy the needs of the society. सोसाइटी के लिए क्या गुड्स चाहिए, क्या सर्विसेज चाहिए, इन एक्सचेंज ऑफ मनी द बिजनेस इज डूइंग दैट. सो business activities are all those human activities which are directed towards the production and processing of wealth. कविता मिस इन डिटेल आपको डेफिनेशन समझाया, मीनिंग भी समझाया. So today I am proceeding with the features of business. Features here, features भी सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है. वैशिष्ट्य बोलते हम लोग, उसका स्पेशलिटी. बिजनेस किसके लिए बोलते हैं, ये बिजनेस है. अभी 2 जन खड़े रहते हैं, 2 जन, एक जन
बिजनेस करता रहता है, एक जन दान करता रहता है. He is donating that. This man is selling the goods for money. Means donate क्या कर रहा है? That is not the business. Because he loves to donate, so he is donating. He is not taking any money. Another person is selling the goods for a money or money's worth. So दोनों एक्टिविटी में purely कौन economic means here who is selling the goods for a money, कोई बिजनेस बोल सकते हैं हम लोग. Okay, so business means economic activity. Business means earning the money. Business means earning the profit. So एक activity done for earning the money. An activity done for earning the profit. So business is purely economic activity. It is not because of love. It is not because of affection, feelings, sentiments. Clear, students? Then second feature is business में two parties चाहिए. ट्रांजैक्शन करने के लिए. ओके, बीके मिस ने आपको समझाया, एक लेने वाला एक देने वाला है. मीन्स एक्सचेंज बिजनेस में टू पार्टीज चाहिए, दैट इज बायर एंड सेलर. वन हैज टू बाय द गुड्स, वन हैज टू सेल द गुड्स, वन हैज टू सेल द सर्विसेज, वन हैज टू बाय द सर्विसेज. ओके, सो एक ट्रांजैक्शन चाहिए. ट्रांजैक्शन फॉर मनी, अगेन आई एम टेलिंग. ऊपर क्या मैंने बताया? ट्रांजैक्शन फॉर मनी. ओके, सो वो ट्रांजैक्शन क्या होता है? दैट शुड बी अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट. एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? बोलने का भी एग्रीमेंट हो सकता है. हाँ, इतना में देगा, इतना आपको कैश देगा, इतना आप लोग गुड्स दे दो. दैट इज ओरल एग्रीमेंट. यही ट्रांजैक्शन रिटर्न में भी हो सकता है. बड़ा आप लोग घर खरीदने को जाएंगे, उधर एग्रीमेंट चाहिए ना. There should be agreement between the builder and the buyer. So बड़ा ट्रांजैक्शन है, वो करोड़ का ट्रांजैक्शन है. So रिटर्न रहेगा तो ही अच्छा है ना. If there's any conflicts, कुछ misappropriation हो गया, means that time written agreement will stand as a proof in the court of law. Always written agreement is preferable. So business में, again I'll repeat, business meant to earn the money in the form of profit. Business में two persons चाहिए for doing the transaction, which is known as buyer and seller. वो दोनों persons को हम लोग क्या बोलते हैं? Buyer and seller. वो दोनों के बीच में agreement होना चाहिए. Agreement may be oral or written. Better it should be in written. मेरा सेंटेंस याद रखो स्टूडेंट्स. ओके, ये ओरल में भी, एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन. बेटर इट शुड बी इन रिटन. एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. बेटर इट शुड बी इन रिटन. इसके ऊपर भी आपको ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है क्वेश्चन, एग्रीमेंट के ऊपर. Then proceeding with the third feature, business क्यों कर रहे हैं? Business is meant to earn the profit. Objective of the business is to earn the profit. Motive of the business is to earn the profit. Profit ऐसा नहीं है सिर्फ थोड़ा प्रॉफिट मिल गया, ऐसा नहीं है. बिजनेस एम इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. मैक्सिमाइज प्रॉफिट मीन्स ज्यादा खर्चा करके एक गुड्स बनाने के लिए 100% 100 रुपीज खर्चा करके 100 रुपीज हम लोग अर्न किया. नो नो, नॉट दैट इज नॉट द कैलकुलेशन हियर. प्रॉफिट कमाने का बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट. ऑलवेज बिजनेसमैन इज थिंकिंग सेल्स ज्यादा करने का मतलब प्रोडक्शन ज्यादा करने का. प्रोड्यूसिंग द गुड्स इन अ बल्क इंक्रीज द प्रोडक्शन and increase the volume of sales.
प्रोडक्शन, एक गुड्स बनाने को भी उतना ही एफर्ट्स लगता है, उतना ही टाइम लगता है. सो बिजनेसमैन ऑलवेज थिंक दैट टू प्रोड्यूस द गुड्स इन अ बल्क एंड सेल द गुड्स इन अ बल्क में गुड्स प्रोडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या लगता है, खर्चा क्या लगता है, वो कम हो जाएगा. स्टूडेंट्स ऑलवेज ये कॉमर्स स्टूडेंट्स याद रखो. हाँ, सेल्स ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, सेल्स ज्यादा होना चाहिए विथ रिड्यूस्ड कॉस्ट. वही टाइम में हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा सेल करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा. सो बिजनेस should be meant for long term, not for short term. लॉंग टर्म का बिझनेस स्वप्न बघायला पाहिजे बिझनेसमॅन. सो आज बिझनेस चालू करणार, उद्या बंद करणार असं नाहीये. इट शुड बी मेंट फॉर अ लॉंग टर्म. स्टूडेंट्स लास्ट सेंटेंस देखो, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मे डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. बिजनेस टू बिजनेस बोलेंगे तो एक पान शॉप एंड एक रिलायंस कंपनी, बड़ा कंपनी, एक छोटा शॉप है, वो बड़ा कंपनी है, उनका प्रॉफिट अलग है, इनका प्रॉफिट अलग है, बट मोटिव एक ही है, दैट इज टू अर्न द प्रॉफिट. सो प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. प्रॉफिट डिफर होगा बट प्रॉफिट ही मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस क्यों कर रहा है? टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कंज्यूमर गुड्स. ओके, सो कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हियर, रॉ मटेरियल अभी बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेंट टू प्रोड्यूस द क्लॉथ. वो क्लॉथ प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को चाहिए कॉटन, रॉ कॉटन. कॉटन किधर से मिलता है? फार्मर इज ग्रोइंग द कॉटन. सो वो रॉ मटेरियल, ही इज ऑल्सो डूइंग द बिजनेस. रॉ कॉटन वो सेल करेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को. सो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑल्सो डूइंग द बिजनेस. ही इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द गुड्स. कॉटन क्यों प्रोड्यूस किया फार्मर? To sell the cotton and to earn the profit. So कॉटन उसने सेल किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको फाइन थ्रेड बना के, क्लॉथ बना के कंज्यूमर को सेल किया है टू अर्न द प्रॉफिट. सो बिजनेस किधर हम लोग बोलेंगे? बिजनेस इज मेंट टू डू द गुड्स एंड सर्विसेज, टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. होटल में, hotels they are giving the services. Hotels they are giving the services. Transport agents they are giving the services. Banks are giving the services. Warehousing they are giving the services. They are also doing the business. Madam, bank किधर प्रोडक्शन करता है goods? No, bank is giving the service. Insurance company is giving the services. सो बिजनेस में गुड्स भी आता है, सर्विसेज भी आता है. ये इज द फीचर ऑफ अ बिजनेस. नेक्स्ट फीचर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सचेंज हियर आई हैव टोल्ड यू, बिजनेस का डेफिनेशन इटसेल्फ मैंने हम लोगों ने बताया. It is purely meant for exchange of goods and services for money or money's worth. Students, दान करेंगे? No, it is not the business. Mother is stitching the cloth for a daughter. It is not the business. वही cloth टेलर स्टिच करके टेलर को हम लोग अमाउंट क्या देते हैं? That is business. So exchange means here exchange of goods and services for money, students, or barter exchange. Wheat is exchanged for rice. आपका बुक में दिया है, wheat is exchanged for rice. So that is a business.
एक डोनेट किया है, गिफ्ट दिया, नो, दैट इज नॉट द बिजनेस. So if goods are donated or given as a gift, then it cannot be considered as business activity. बिजनेस एक्टिविटी किधर हम लोग बोलते हैं? अगेन आई एम टेलिंग, इफ इट इज प्योरली फॉर मॉनिटरी गेन्स, प्योरली फॉर मनीज वर्थ, transfer of goods and services directly, indirectly with money or money's worth, students. That is a business. So once again, I'll repeat all the 5 features of business. Next 5 features will be explained by Kavita Miss in the 4th lecture. That first lecture human activities के ऊपर हो गया. Second lecture Kavita Miss का definition and meaning मैडम ने explain किया. Third lecture मेरा, that is I have explained the 5 features of business. इधर तक आपका नोट्स कंप्लीट करके ही रखने का है. सो नेक्स्ट 5 फीचर्स कविता मिस एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो once again I'll repeat all the features which I have explained today. That business is an economic activity. business में 2 parties चाहिए, buyer and seller. business का main motive है profit. business में goods and services चाहिए. business is meant to exchange the goods and services. So आपको क्या पैटर्न हम लोगों ने बताया प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, वही पैटर्न आपको फॉलो करने का है स्टूडेंट्स. देन today I am going to conclude the lecture with the message that stay blessed, stay home, stay happy, stay safe. See you soon in the college. and college में मिलने के बाद पहला आपका नोटबुक ही चेक करेगी मैं. सो आपको प्रेजेंटेशन अच्छा से समझाया माई सेल्फ एंड कविता में. सो आपको प्रेजेंटेशन अच्छा करने का है. आंसर अच्छे से लिख के नीट राइटिंग में समझ में आना चाहिए. आप लोग टेक्स्ट बुक्स सामने रख के स्पेलिंग विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक यू कंप्लीट योर नोट्स. Okay, see you soon in the next lecture. Thank you, students.